Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher, and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay, so students, open your computer book, turn to page number 37 and chapter number 7, keyboard. Okay, turn to page number 37, chapter number 7, keyboard. Okay, so through this chapter, we will learn about keyboard and the various types of keys and their functions like numeric key, alphabetic key, special key, arrow key. Okay, तो गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ेंगे। सो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 7, कीबोर्ड। ओके, इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में। मतलब कीबोर्ड के टाइप्स ऑफ कीज, अलग अलग तरीके की कीज होती हैं कीबोर्ड में, उनके बारे में, जैसे कि अल्फाबेटिक की, स्पेशल की, एरो की, न्यूमेरिक की। तो ये सारी कीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी। मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे सो दैट यू कैन प्रोनाउंस करेक्टली। ओके ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7, कीबोर्ड। Chapter number 7, keyboard. A keyboard has a number of keys which are arranged. A keyboard has a number of keys which are arranged in rows or blocks. When we type text, numbers, or symbols, by pressing these keys, we enter them into a computer. There are different sets of keys on the keyboard. They are numeric key, alphabetic key, special key, and fourth is arrow key. Turn to the next page. Numeric key. Numeric keys are used for typing numbers. They are also called number key. There are 10 numeric keys. There are two sets of numeric key on a keyboard. First, one set of numeric key, one set of numeric keys are arranged on the second row of the keyboard. Second, other one numeric keypad is arranged on the right hand side of the keyboard. Alphabetic key. There are 26 alphabetic keys on the keyboard. By using alphabetic keys, both the small as well as the capital letters can be typed. Okay, now turn to next page. Special keys. Special keys perform a specific task, some of them described below. Shift key. It is used in combination with the other keys. It is also used to type the top row symbols of the numeric keys. For example,
To type your name, start from capital letters, press and hold Shift key and then press any letter. Thus, letter will be shown in uppercase. Caps lock key. Caps lock key is a toggle key which is used to type capital letters. For example, when caps lock key is on, all the typed letter will appear in uppercase. Pressing the caps lock key, once more switches, it's off. It off. When the caps lock key is off, all the typed letters will appear in lowercase. Now turn to next page. Delete key. Delete key is used to delete the text. It's erase the character to the right of the cursor. Place the cursor before the text that you want to delete. Press delete key. It will erase the text on the right side of the cursor. Backspace key. Backspace key is used to erase the text on the left side of the cursor. Place the cursor at the end of the text or word. Press backspace key. It will erase the text on the left side of the cursor. Spacebar key. Spacebar key is the longest key of the keyboard. It is used to give a blank space between two letters, numbers or words. So till here, till page number 40 we finished today. Okay, so आज के लिए हम लोग सिर्फ पेज नंबर 40 तक ही पढ़ेंगे और on the next video lesson we will read the another part. हम लोग आगे का पार्ट को अगले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है? Okay, now so I'm going to explain these things. मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हिंदी में. So listen carefully. Keyboard has a number of keys which are arranged in row or blocks. देखिए कीबोर्ड में कई सारे कीज होते हैं जो अरेंज होते हैं रोज में और ब्लॉक्स में. देखिए जैसे यहाँ पे लाइन में अरेंज्ड होते हैं, सही से सेट किए हुए होते हैं. When we type text, numbers or symbols by pressing these keys, we enter them into a computer. और जब भी हम कीबोर्ड में कुछ भी दबाते हैं ना, बटन दबाते हैं, चाहे वो नंबर दबाएं, चाहे वो टेक्स्ट दबाएं या कोई सिंबल दबाएं, तो वो उससे होता क्या है कि कुछ भी चीजें मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं वो अंदर जाते हैं कंप्यूटर के. मतलब जस्ट सोचने वाली बात, मतलब ये जस्ट एग्जांपल है. तो जैसे हम कोई नंबर दबाते हैं, सिंबल या फिर कोई भी चीज जो इसमें छपी हुई है कीबोर्ड में, उसको हम दबाते हैं तो वो चीजें अंदर जाती हैं कंप्यूटर के. ठीक है? और इसके बाद मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाई देती हैं. सो देयर आर 3 सेट्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. देखिए देयर आर डिफरेंट सेट्स, नॉट 3, सॉरी, देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. ऐसे बहुत तरीके के सेट हैं कीबोर्ड के. उसमें से कुछ हैं न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिक की, स्पेशल की एंड एरो की. तो ये 4 तरीके के सेट्स हैं कीबोर्ड पे, कीज के सेट्स. जैसे कि न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिक की, स्पेशल की और एरो की. ठीक है? सो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या है ये कीज.
फर्स्ट इज न्यूमेरिक की। सो न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स। तो देखिए न्यूमेरिक नाम से ही नंबर न्यूमेरिक है मतलब नंबर टाइप है। सो न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि व्हाट आर द यूसेस ऑफ न्यूमेरिक की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स, है ना। सो देयर न्यूमेरिक की जो है नंबर टाइप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर की। अब इसको हम नंबर की भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिक की या फिर नंबर की भी बोल सकते हैं। देयर आर 10 न्यूमेरिक कीज। देखिए 10 न्यूमेरिक कीज होते हैं, वैसे भी नंबर भी तो 10 ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने 10 न्यूमेरिक कीज होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिक की है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ न्यूमेरिक की ऑन द कीबोर्ड। ना दो सेट कीबोर्ड में दो सेट रखे हुए हैं न्यूमेरिक की के। मतलब दो जगह पे न्यूमेरिक की है, नंबर वाले की। फर्स्ट, on one set of numeric key are arranged on the second row of the keyboard। देखिए एक सेट जो है वो सेकंड रो ऑफ कीबोर्ड है। देखिए फर्स्ट रो तो फंक्शन की है, उसके नीचे है न्यूमेरिक की, ये वाला यहाँ पे है। और दूसरा, द अदर वन न्यूमेरिक कीपैड इज अरेंज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। और देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ भी नंबर की है। तो यहाँ भी नंबर की है और यहाँ भी नंबर की है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक जैसे कि अल्फाबेट ना, ABCD ये वाले। तो दे अल्फाबेट कितने होते हैं, कितने होते हैं? यस, अल्फाबेट 26 है ना, इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है ना। सो इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, तो नंबर जो कीज होंगे वो कितने होंगे? Obviously 26. So there are 26 alphabetic keys on the keyboard. Alphabetic जितने हैं, जितने अल्फाबेट हैं उतने अल्फाबेटिक की हैं। तो there are 26 alphabetic keys on the keyboard. तो कीबोर्ड में 26 अल्फाबेटिक कीज हैं, हर एक लेटर के लिए, हर एक लेटर के लिए एक की है। ए के लिए B, C, D ऐसे के लिए। By using alphabetic keys, both the small as well as the capital letter can be typed। और ये अल्फाबेटिक की से हम स्मॉल लेटर भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल लेटर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको स्मॉल टाइप करना है तो हम स्मॉल टाइप कर सकते हैं, अगर हम कैपिटल ए टाइप करना चाहते हैं तो कैपिटल ए भी उसी से टाइप कर सकते हैं। तो ये चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप आगे देखेंगे नंबरिक की में, आगे देखेंगे कि कैसे इसको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल की दबाना पड़ता है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल की। अब ये जो है ये स्पेशल की है। स्पेशल की का फंक्शन जो है वो कुछ स्पेशल काम करते हैं, नाम से ही लग रहा है स्पेशल की। सो स्पेशल की परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल कीज जो है वो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और कुछ जो है स्पेशल कीज में उसको हम यहाँ पे किताब में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि शिफ्ट की, पहला है शिफ्ट की। It is used in combination with other keys. It is also used to type the top row symbols of the numeric key। अब देखिए आपके पास अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में देखेंगे कि ऊपर में कुछ कुछ सिंबल लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, इसके बाद ये कोई साइन है, 2 लिखा है, @ लिखा है, 3 लिखा है, हैश लिखा है, पता नहीं और क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन नंबरों को, ऊपर वाले जो छोटे नंबर हैं उनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट दबा कर टाइप करेंगे तो वो काम करेगा। तो शिफ्ट की जो है वो कॉम्बिनेशन है किसी और की के साथ। शिफ्ट की के साथ कोई कोई और की दबाएंगे तो कुछ और होगा। तो शिफ्ट कॉम्बिनेशन करता है किसी की के साथ में। ठीक है, कंबाइंड करके वर्क किया जाता है शिफ्ट को। ठीक है, और इसका इस्तेमाल टॉप रो में कुछ लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए भी किया जाता है। तो शिफ्ट दबा के ऊपर वाला जो भी कीज में ऊपर ऊपर में लिखा हुआ है, नॉट टॉप रो, मतलब जो जो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर वाली रो में जो छोटा छोटा लिखा हुआ है
इन सिंबल्स को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टू टाइप योर नेम स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। अब अपना नाम आप टाइप करना चाहते हैं तो सबसे पहला लेटर कैपिटल होता है, हम लोग जानते हैं। तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले शिफ्ट दबाना होगा। उसके बाद जो भी लेटर आपको टाइप करना है, आपके जैसे आपके नाम अगर ए से शुरू होता है तो ए टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर शिफ्ट को छोड़ दीजिए और अपने सारे लेटर्स को टाइप कीजिए तो वो लोअर केस में हो जाएगा। या फिर आप शिफ्ट दबाए रखेंगे और सारे कीज दबाते जाएंगे तो सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक की ऑन होगा तो ना, कैप्स लॉक की ऑफ होगा तो आपका सारा लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, ओके नाउ तो नेक्स्ट चीज है कैप्स लॉक की। अगला है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की क्या करता है? कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की विच इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है। टॉगल की मतलब, टॉगल की मतलब अगर मतलब अपोजिट वर्क करता है, टॉगल कर देता है। अगर कैपिटल लिखा रहा है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो वो स्मॉल लिखाने लग जाएगा, और अगर आप स्मॉल टाइप करेंगे तो फिर वो कैपिटल लिखाने लग जाएगा। मतलब अगर कैप्स लॉक की ऑन रहेगा तो वो स्मॉल लिखाएगा, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन रहेगा तो क्या होगा और ऑफ रहेगा तो क्या होगा। तो वो बटन से बड़ा अक्षर या छोटा अक्षर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑन, अगर कैप्स लॉक की ऑन रहेगा तो सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखाएगा। कैप्स लॉक की का लाइट यहाँ पे होता है, ये जल जाएगा। अगर ऑन करेंगे तो वो लाइट जल जाएगी, और अगर लाइट जल रही होगी तो सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखाएगा। जो भी आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे ABCD Z तक, वो सारे लेटर्स कैपिटल में लिखाएंगे। क्लियर? और अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं कैप्स लॉक की को, तो दोबारा उसको फिर से दबा दीजिए। प्रेसिंग द कैप्स लॉक की वंस मोर स्विच इट ऑफ। और दोबारा आप उसी की को फिर से दबा देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। और जब वो ऑफ हो जाएगा तब सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में लिखाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर में लिखाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई नाम लिखना है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो एक बार कैप्स लॉक की दबाइए, उसके बाद अपना नाम का पहला लेटर लिखिए, उसके बाद कैप्स लॉक की ऑफ कर दीजिए और बाकी लेटर्स को लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका पहला लेटर, आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, सो कैप्स लॉक की का वर्क समझ में आ गया, राइट? नाउ डिलीट की। डिलीट की, तो डिलीट की का वर्क क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है डिलीट, हम लोग सब जानते हैं डिलीट का मतलब क्या होता है। डिलीट मतलब कुछ चीज हटा देना, मिटा देना, है ना। सो डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट द टेक्स्ट। अब डिलीट की का इस्तेमाल हम लोग किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें डिलीट के, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं और भी चीजों को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, इट इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो डिलीट की का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को डिलीट करने के लिए या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपको गलती हो गई, आप उसको मिटाना चाहते हैं तो बस डिलीट की दबाएंगे। तो डिलीट की दबाने से आपके राइट साइड में जो कर्सर है, कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन है जो आपको जब आप टाइप करेंगे तो वहां पे दिखाई देगी। तो कर्सर के राइट साइड वाले लेटर को डिलीट कर दिया जाएगा। प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट। तो अगर वो वाला जो कर्सर है, मतलब अगर आप किसी लेटर्स को, किसी अल्फाबेट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उस कर्सर को उस लेटर के पास में रखना होगा, उससे पहले रखना होगा। तभी जाकर के उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रेस डिलीट की, इट विल इरेज द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। तो राइट साइड वाला जो पोर्शन है कर्सर के जो राइट साइड में है, मतलब इधर साइड, मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है। हाँ, अगर आपको यू डिलीट करना है, कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ कर्सर रहेगा तो यू डिलीट होगा। और अगर मान लीजिए कर्सर आर और यू के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है और आपने डिलीट की दबाया तो इधर वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा, एस डिलीट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे रहेगा तो एस डिलीट हो जाएगा। और अगर
यू पे रहेगा तो आर डिलीट हो जाएगा, मतलब राइट साइड वाला पोर्शन डिलीट होगा। क्लियर? नाउ बैकस्पेस की, अब बैकस्पेस की का भी सेम ही काम है। ये डिलीट ही काम करता है। बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अब बैकस्पेस की जो है वो लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करने का काम करता है। जैसे कि कर्सर मान लीजिए कि यहाँ पे हो, ई के ऊपर कर्सर हो, और अगर आप बैकस्पेस की दबाएंगे तो वो के को मिटाएगा। जबकि आप डिलीट की को दबाएंगे तो वाई को मिटाएगा, लेकिन आप बैकस्पेस की दबाएंगे तो के को मिटाएगा, मतलब इधर वाली कीज को मिटाएगा। ठीक, जबकि डिलीट की इधर वाली की को मिटाता है। क्लियर? समझ में आया? प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और वर्ड। आप अगर किसी टेक्स्ट या वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके एंड पे लेके जाइए और फिर वहां से डिलीट करिए। ठीक है? प्रेस द बैकस्पेस की, इट विल इरेज द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, और उसके बाद फिर बैकस्पेस की दबाएंगे तो वो कर्सर के लेफ्ट साइड वाली कैरेक्टर्स को डिलीट करता चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्पेस बार की। स्पेस बार की कीबोर्ड की सबसे लंबी वाली की है, देखिए यहाँ पे है सबसे लंबी वाली की। It is used to give the blank space between two letters, numbers और word। देखिए स्पेस बार की का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट की है ये। इसका इस्तेमाल हम लोग दो लेटर या नंबर या किसी भी चीज में स्पेस देने के लिए, खाली जगह छोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए गुड मॉर्निंग लिखना है तो आप लिखेंगे पहले GOOD गुड, उसके बाद आपको खाली जगह छोड़नी होगी ना, तभी तो अगला लेटर लिखेंगे। तो वो खाली जगह छोड़ने के लिए या वो स्पेस छोड़ने के लिए इस की को दबाएंगे, स्पेस, उसके बाद फिर MORNING। क्लियर? यस। सो नाउ आज के लिए इतना ही, आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल फिनिश अप रेस्ट ऑफ द पार्ट। अगली वीडियो लेसन में हम लोग आगे की इसको देखेंगे। सो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखेंगे मैच द फॉलोइंग। ए लिखा हुआ है, इसको मैच कराना है। न्यूमेरिक की है या होम की है या अल्फाबेटिक की या डिलीट या एंटर की, बताइए कौन सा है। ए लिखा है, दैट मीन्स ABCD कुछ भी होगा वो सारा क्या होता है, अल्फाबेटिक की, तो मैच करा लीजिएगा अल्फाबेटिक की। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिक नम की, नम लॉक। नम लॉक क्या है, ये नम लॉक है, मतलब नम लॉक की, हाँ, ये नंबर लॉक को लॉक कर देता है। इसका इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको मैच करा लीजिए। नेक्स्ट इज होम की, ये वाला होम बटन है तो ये होम की के साथ मैच होगा। ये एक बटन है एंटर की, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर, तो ये एंटर की, तो यहां से मैच हो जाएगा। ये है डिलीट की ना, तो ये मैच हो जाएगा डिलीट से। क्लियर? ओके, सो आप इस तरीके से इसको मैच करा लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज नीचे वाला, फिल द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। इसमें से आपको मिसिंग लेटर्स भरना है। पहला क्या है, एच। एच से कौन सा लेटर शुरू होता है, एच से कौन सा होगा, होम की, ये देखिए यहाँ पे है ना होम की, तो होम का स्पेलिंग है HOMEKEY, होम की, तो लिख लीजिएगा होम की। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला है बैक स्पेस की, काफी बड़ा है, तो लिख लीजिए बैक स्पेस की, स्पेलिंग देखिए बैक स्पेस की। ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज शिफ्ट की, SHIFT, शिफ्ट, KEY की। ओके, सो इस वीडियो को पॉज करके आपको सारे आंसर्स को लिख लीजिए अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, हैव a great day. Thank you for watching.